Okay, so in last class, we have studied about uh, the definition of database, then the difference between RDBMS and DBMS, and we have studied about what is SQL, what is the difference between a structured query language and a software, MySQL and other softwares. Then we gone through the tables and the fields. We have gone through the constraints in SQL, not null, default, unique. Then we have studied about primary keys, foreign keys, unique constraints, and so on. So today we will be discussing about normalization. So this topic has also been a hot topic for your interview sessions. If you are going for the DBMS subject, then this particular topic must be there. Okay, so first of all, we have to understand the term normalization. So what do you mean by the term normalization? Or we will break it into a normal, the term normal. What is it? Anyone? What do you mean by the term normal? According to the norms, according to the rules, Which is very, default. yeah, which is very, simple, which must not be having any kind of anomaly, which must not be having any kind of uh, any kind or something that can be pointed out, that is being normal. So normalization is what? That you are actually, what you are doing, you are actually designing, you are actually creating some rules or some applications by which your data should behave or look like as a normal data. So basically normalization is what? Normalization is a database technique, a database design technique that reduces your data. And what it is going to be reduced? It reduces data redundancy. If there are any kind of data variables, fields, or rows that are redundant, that are having duplicacies, then these duplicacies or these anomalies will be removed after the normalization. So why we do normalization? Why it is important? Because we don't want to have redundant data in our database. If we do have redundant data, then my data value would be increased, my storage space would be increased. So I want data that should be crisp, and that should be as per the requirement. There should not be any redundant data. So normalization is the technique that you are applying on your data to remove the redundant elements or to eliminate the undesirable characteristics. And what are those undesirable characteristics? That are insertions, updations, deletions, whatever the anomalies related to these types of characteristics that has been removed under your normalization techniques. So basically normalization rules are is to divide the larger table into the smaller table. Do remember this, that you are going to divide a kind of a table that you have in your database into some smaller sections. Okay, so this is known as the normalization in database. So here we are having the example. We will be going through all these examples to understand how we can normalize our data. So there are the some techniques. There are, basic techniques by which you can normalize your data. The first one is your first NF. Everyone heard about it. Okay, tell me what are the different kinds of normalization techniques or normal forms in SQL? Anyone knows? फर्स्ट एनएफ सेकंड एनएफ थर्ड एनएफ First BCNF. मैम 4 होती है BCNF. बेसिक. 4NF Okay, yes. 5NF 5, 6, 7. मैम बट बेसिक 4 होती है. Yeah, actually, what what is the logic behind this? The inventor of this relational model, Edgar Codd, if anyone remember
this name, Edgar Cod, EDGARCODD. So he is the one who proposed the theory of normalization. Okay. So what happened is, I'll write his name. Wait. Edgar Cod. If anyone asks you, then you should remember that he is the person behind all this normalization theory. So what happens is कि जब आप break कर रहे हो किसी table को two parts में, two or more or whatever the requirement is, depending upon कि आपकी redundant data कितना है. तो he proposed first NF, he proposed second NF, he proposed third NF. So क्या हुआ? In 3NF, there were some of the anomalies due to composite key. We will go through composite key as well. What do you mean by composite key? So जो anomalies रह गई due to the redundant composite keys, वो मेरी किस में change हुई? BCNF में. Now what is BCNF? Full form कोई बताएगा? Anyone? Ma'am, boys Boys called normal form. Boys caught normal form. So जब एडगर कॉड ये जब उन्होंने थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनाई तो उसके बाद ही जॉइंड विद रेमंड बॉयस नाम था उनका, एंड देन टुगेदर दे डेवलप द थ्योरी ऑफ BCNF. सो तब वहां जाके आपकी जो है ये रिडंडेंट वैल्यूज जो आपके 3NF में भी रह गई फॉर जस्ट इन अ केस. वैसे ऐसा बहुत रेयर होता था कि 3NF में हो, बट अगर वो रह जाती थी तो आप BCNF के थ्रू उन्हें सॉल्व कर सकते हो. सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि what are the by default normal forms in database, then you can say yes, these are this one: first NF, second NF, third NF, and BCNF. You can take the name of BCNF as well. Okay, so let's start with first NF. What is first NF? So first NF says each table cell should contain a single value, first point, and each record needs to be unique. There is only two rules in first NF, that every cell must have a single value, and second one is every record needs to be unique. So if you see in this particular table, you are having names. This is the names of the customers, their addresses. Now the movies rented, the type of the movies they have rented, these are the list, and their salutations. Okay, so first point क्या कह रहा है मेरा? That every table should contain a single value. But in this particular table, we are having multiple values. So person Janet Jones is having two movies on her name, on her name, sorry. Pirates of the Caribbean and Clash of the Titans. Salutation is missed. That's why we can able to recognize it is his or her. So दो entries है मेरे पास यहाँ पे movies rented में, and rule कहता है that each table should contain a single value. Then I will eliminate this particular value. And what I'm going to do with the elimination, I'm going to create another table which is having the same name, same address, same salutation, but a different entry. So इसके लिए what I have to do, I have to create a primary key. So मैंने आपको जो कल पढ़ाया था, that was important here, because before creating or before dividing your table into two parts, you should know what is primary key, what would be your foreign key, and what is your composite key. So I think everyone is having all the idea about these three keys. Primary key आपको पता है, unique key, a kind of a key that by which you can easily identify a whole record in your database. Foreign key is what? It would be referencing your primary key. It would be used as a kind of a unique key
but it should have the primary key as well in the linking. And composite key हमने कल नहीं बात की थी. So composite key is what? It is a combination of your primary key and some of the other entries as well. So that by the help of these two compositions, two or more composition, you will be able to find out that particular record in your table. So that would be your composite key. For example, if you have an employee ID and if you have employee department, and in some table you need employee ID as well as you need employee department just to find out a particular employee. So the combination of these two key would create a composite key by which you will be able to find out that particular record in the table. Okay, so what I am going to say here is that in first NF, each table cell should contain a single value. So I'm going to divide it into two tables. So what it is looking like, Janet Jones, again the physical address and the Pirates of the Caribbean movie name, salutation. Again Janet Jones, physical address, Clash of the Titan, salutation. Then again Robert Phil, physical address, Forgetting Sarah Marshall, salutation. Robert Phil, address, Daddy's Little Girls, Mr. Then again, there is the third entry. If you are able to see, the name is similar for these two people. They are having different addresses, but the name is same. So the fifth one is Fifth Avenue, his physical address, Clash of the Titans, and salutation. Okay. So हमने क्या किया? What we have done here, we divided all these particular entries into a single entry. So पहला record, पहला जो मेरा rule था, that particular rule is being fulfilled. Okay, ये rule मैंने यहाँ पे fulfilled कर दिया. अब next rule क्या कह रहा है? Each record needs to be unique. तो क्या मेरा यहाँ पे ये record unique है? तो मैं देख सकती हूँ yes, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ name, physical address, Pirates of the Caribbean, salutation, ये सारी चीजें एक यूनिक एंट्री हो गई. अगेन मैं देखूं नेम इज सेम, एड्रेस इज सेम, बट मूवी रेंटेड इज डिफरेंट, सैल्यूटेशन इज सेम. तो एटलीस्ट मेरी एक एंट्री जो है वो मेरी एक एंट्री डिफरेंट हो गई. तो मेरी ऐसा नहीं है कि सेल मेरा जो है सेम ला रहा है. तो मेरा रूल जो था, एक मिनट, I think screen sharing has been stopped, right? Yes. So मेरा रूल जो है वो यहाँ पे अभी फुलफिल हो रहा है. मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि मुझे अगेन फर्दर इसमें कुछ और चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ये मेरा फुलफिल हो गया. तो यहाँ पे दिस टेबल इज नाउ इन फर्स्ट NF. What would happen in the questions is you must be having any kind of a table like this, and you have to find out whether this table is in first NF or not. तो आप उसे देख के आराम से बता सकते हैं कि ये टेबल आपकी फर्स्ट NF में है या नहीं है. ठीक, देन उसके बाद come to second NF. So what is second NF here? Second normal form says rule 1 that particular table on which you are applying the rules of second NF must be in first NF. It means you cannot directly jump upon second NF. You have to follow the rules of first NF and then you will be able to apply the rules of second NF. So first rule is it should be in first NF, and second rule is single column primary key that does not functionally dependent on any subset of the candidate key relation. What does it means? कोई बता पाएगा? मैं बताती हूँ क्या कह रहा है ये.
What is second NF? Second NF कहता है in shorter form. The first rule is very much clear. The table should be in the first normal form. Now, what is the second point saying? That there should not be any kind of partial dependencies. Now, before applying the rules of second NF, you must know what is functional dependency, what is partial dependency, and what is, which one is the third? If anyone knew? Transitive. Transitive dependency. Ma'am, that happens in 3NF. Yes. Transitive dependency. So, अगर किसी को नहीं पता what is functional dependency, let me clear this first, because अगर आप नहीं जानते functional dependency या partial dependency या transitive dependency, then you would not be able to apply all these rules. So what is functional dependency? Let's talk about the dependency first. So what happens is, मान लीजिए you are having a student table. Okay, आपके पास में, let me take an example that you have a student table. What you are having into this? एक है मान लीजिए आपका स्टूडेंट आईडी, ठीक है. दूसरा आपका हो गया मान लीजिए स्टूडेंट नेम, आपने ले लिया. तीसरा आप इसमें क्या ले सकते हैं, मान लीजिए आप ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ले लेते हैं ब्रांच ले लेते हैं, और यहाँ पे आप उसका फोन नंबर ले लीजिए. ठीक ना. अब आपके पास में ये टेबल है, आपने स्टूडेंट टेबल बनाई, एंड विद द कॉलम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ब्रांच हो गया, फोन नंबर हो गया. सो वी कैन डायरेक्टली सी कि स्टूडेंट आईडी वुड बी माय प्राइमरी की. ये हम सबको पता है कि अगर मुझे इसमें से कोई स्टूडेंट आईडी बनानी है, तो स्टूडेंट आईडी में प्राइमरी की बनानी है, तो मैं यहाँ प्राइमरी की किसको बनाऊंगी? दिस वन, स्टूडेंट आईडी को. ठीक है, प्राइमरी की मुझे पता है, एवरीवन नोज व्हाट इज प्राइमरी की. नाउ अब आप इस पर्टिकुलर टेबल में से किसी भी एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर स्टूडेंट आईडी विच इज योर प्राइमरी की. सो हो क्या रहा है यहाँ पे, योर प्राइमरी की फॉर दिस टेबल and for all the columns, like they are actually dependent upon that particular primary key. All the columns are dependent upon your primary key. It means without the help of primary key, you are not able to fetch any record, or you cannot guarantee that that particular record is a unique record. If we are fetching a record uniquely, then the dependency goes on your primary key. So student ID and every other column depends upon it for fetching it. So this dependency is known as functional dependency. Okay, do remember. Now what is partial dependency here? So what would happen is, if you want to add some other columns to this particular table, मान लीजिए आप जो है यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं. Ma'am, your voice is breaking, ma'am, in between. Okay, मेरी वॉइस नहीं आ रही है. Ma'am, voice का फिर भी मैसेज. Okay, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है फुल डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी में?
Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Okay, now. okay, okay. There was some network issues. Yeah. So what I was saying is कि अगर आपको कोई भी रो फेच करनी है and with the help of the primary key, so आपके सारे columns जो है या जो भी रो आप फेच करना चाहते हैं, that particular row is totally dependent upon your what student ID, your primary key. Okay. सो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जब आपके सारे के सारे कॉलम्स डिपेंडेंट होंगे आपके प्राइमरी की के ऊपर, नाउ दैट डिपेंडेंसी इज नोन एज योर फंक्शनल डिपेंडेंसी. व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी? अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है, मान लीजिए मैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी तो प्राइमरी की बन सकता है और फोन नंबर भी ना. आप कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमने स्टूडेंट आईडी को लिया, ठीक है. आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए, बट फोन नंबर कुड बी सेम, क्योंकि मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों के पास एक ही फोन है, दो बहनें हैं, तो हम उस केस में फोन नंबर को थोड़ा कंसिडर नहीं करते. तो द नंबर शुड बी यूनिक व्हेन यू आर फैचिंग द रिकॉर्ड्स. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पार्शियल डिपेंडेंसी आपको बता रही थी, फुल डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी आपने समझ ली. अगर आप कोई नए रिकॉर्ड ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने सब्जेक्ट ऐड किया, उसका एक आईडी है, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट कोड, आप कुछ भी कहिए, एंड आपने यहाँ पे कर दिया दूसरा इज योर सब्जेक्ट मार्क्स, मान लीजिए, ठीक है. अब आप क्या कर रहे हो, जब आप ऐड कर रहे हो, या तीसरा भी कॉलम हम डाल देते हैं सब्जेक्ट का नेम, तो हो सकता है जो आपने ये कॉलम्स ऐड की हैं, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी जो है वो यूनिक एंटिटी रहेगी, बिकॉज किसी भी दो सब्जेक्ट के नाम हो सकता है सिमिलर हो जाएं, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएं, स्ट्रिंग्स कुछ सिमिलर हो उसमें सब्जेक्ट नेम की, या फिर मैं कहूँगी कि हमने जो ये लिया है सब्जेक्ट मार्क्स लिए हैं, ये सिमिलर हो जाएं, बट सब्जेक्ट आईडी मेरा यूनिक रहेगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक स्टूडेंट टेबल में ये दो चीजें ऐड करी. मान लीजिए मैं जो है इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, जैसे मैंने मार्क्स ऐड किए हैं, तो मैं मार्क्स के साथ ही यहाँ पे क्या करूँ, टीचर नेम और ऐड कर दूँ, या मैं ये दिखा दूँ कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर, व्हाई इट इज नॉट, ओके, तो यहाँ पे मैं एक और ऐड करती हूँ कॉलम, मान लीजिए सब्जेक्ट फैकल्टी, ठीक है. अब मैंने यहाँ मार्क्स भी डाले हुए हैं. अब मान लीजिए मैंने उसके साथ में यहाँ पे स्कोर आईडी भी रखा हुआ है, कि स्कोर आईडी भी रखते हैं हम उसका. स्कोर आईडी इज जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर मार्क्स. ये हम एक अलग टेबल में कर रहे हैं, ठीक है, कि मैंने एक टेबल्स बना रखी हैं, अब मुझे ये सारी टेबल्स को मर्ज करना है. मैं आपको ये यहाँ पे इसके साथ लिख के नहीं दिखा रही हूँ. दीज आर दी सेपरेट टेबल्स, द रेड टेबल इज सेपरेट एंड द ग्रीन टेबल इज सेपरेट. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो कॉलम्स को, बट नॉट इन द फर्स्ट टेबल, यू आर क्रिएटिंग अनदर टेबल. अब क्या हो रहा है कि जब आपने ये सारी चीजें कर ली, पार्शियल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम. So when we are creating another table as having a unique ID named as score ID, it is for storing the marks that is being obtained by the students for the respective subjects. Now that particular subject is having different teachers or could be the same teacher. So whatsoever be the subject, it totally dependent upon who is going to teach that particular subjects. So अब यहाँ पे आप इसको प्राइमरी की कौन सी बनाओगे, स्कोर आईडी या फिर स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो आप स्टोर करा रहे हो, तो स्टूडेंट आईडी शुड बी इन योर टेबल. आपके इस टेबल में यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम होना चाहिए, क्योंकि आप पता कैसे लगाओगे किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, राइट. तो मैं क्या कर रही हूं, मैंने क्या किया,
एक टेबल बनाई, उसमें स्कोर आईडी डाला, एक स्टूडेंट आईडी डाला, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स फिल करे, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे टीचर नेम ले लीजिए आप, और मैंने ये टेबल क्रिएट करी। अब यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए? स्टूडेंट आईडी टू नो विच स्टूडेंट मार्क्स आर दीज, एंड सब्जेक्ट आईडी टू नो फॉर विच सब्जेक्ट द मार्क्स आर फॉर। गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कह रही हूँ? अब इस टेबल में से अगर आपको कुछ फेच करना है डेटा, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए और सब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है आपका, कौन सा फॉर्मेशन भला? स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें कलर चेंज करती हूँ, ये स्टूडेंट आईडी या सब्जेक्ट या स्कोर आईडी जो भी आप ले रहे हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी? कैंडिडेट की। पता था ये पहले से? व्हाट इज कैंडिडेट की? यस मैम, उन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिकली Combination. आइडेंटिफाई कर Yes. रहा है। तो जब आपके पास में कैंडिडेट की ऐसे होगी, तो ये कैंडिडेट की आपकी क्या बन जाएगी? फॉर दिस टेबल दैट कैंडिडेट की इज नोन एज योर प्राइमरी की। ओके, सो अब आप इन दोनों के कॉम्पोजिशन को प्राइमरी की कह सकते हैं। सो व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी हियर? पार्शियल डिपेंडेंसी इज दैट कि आपके जो ये टेबल की कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम्स दैट इज लाइक स्टूडेंट आईडी एंड स्कोर आईडी, तो स्टूडेंट आईडी एंड स्कोर आईडी दोनों कॉलम्स की हेल्प से ही आप किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को फेच कर पा रहे हो। तो डिपेंडेंसी जो है स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी पे है, बट टीचर का नाम अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं सारे कॉलम्स को लेके इसलिए चल रही हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे बताना है पार्शियल डिपेंडेंसी। फुल डिपेंडेंसी कब हो जाएगी? सारे के सारे कॉलम्स हमारे जब हैं इन कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट हो, बट टीचर का नाम ये किस पे डिपेंडेंट होगा होली? कैन एनीवन टेल? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, स्कोर। हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट ले लेती हूँ, सब्जेक्ट आईडी, तो टीचर का नाम मेरा होली डिपेंडेंट है सब्जेक्ट आईडी पे। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट आईडी, क्योंकि टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट को कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उससे क्या लेना है? टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिस इज नोन एज योर पार्शियल डिपेंडेंसी, जब आपका कोई भी एक कॉलम, दैट पर्टिकुलर कॉलम इज नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर कैंडिडेट की, ठीक है। तो हम जब यहाँ बात कर रहे थे दैट सेकेंड एनएफ की, सेकेंड एनएफ इज सेइंग दैट फर्स्ट एनएफ होना चाहिए और कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही है, सिंगल कॉलम प्राइमरी की that does not functionally dependent, now you get this word, that does not functionally dependent on any subset of the candidate key relation। अब ये लाइन समझ में आ गई होगी। इट इज सेइंग that it must not have what? Partial dependency, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सेकेंड एनएफ में अब आप क्या करोगे? आपके पास ये टेबल है, अब दिस टेबल इज इन फर्स्ट एनएफ, मुझे इसे क्या करना है? सेकेंड एनएफ में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड एनएफ कैसे यहाँ पे सेकेंड एनएफ होगा? सी, यहाँ पे आपने क्या किया? मेंबरशिप आईडी को अलग कर दिया विद द मूवीज रेंटेड। क्यों कर दिया? क्योंकि मूवीज रेंटेड का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ
मेंबरशिप आईडी पे। तो हमने क्या किया, मेंबरशिप आईडी, फुल नेम, फिजिकल एड्रेस, सैल्यूटेशंस। दूसरा आपने टेबल बनाई मेंबरशिप आईडी और मूवीज रेंटेड, क्योंकि मूवीज रेंटेड का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम क्या है या फिजिकल एड्रेस उनका क्या है। ये एक ऐसा कॉलम है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर मेंबरशिप आईडी। तो हमने उस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ दीज टू टेबल्स आर इन योर 2NF। अब आप ये देखते जाएंगे as you are going downwards to all the normal forms, you are actually removing the redundant data. In every table, you are actually removing the redundancy, you are actually removing the duplicacy. So मेरे यहाँ पे जो भी टेबल्स अब बनती जा रही हैं उनमें डुप्लीकेट वैल्यूज कम होने लगी हैं जो मेरी इनिशियल टेबल में होती थी. So this is the work of your normalization. अब ये सेकेंड NF में हो गया कन्वर्ट, ओके फाइन. नाउ व्हाट इज थर्ड NF? अच्छा थर्ड NF, यस थर्ड NF में हम समझेंगे व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. सो थर्ड NF के लिए पहला रूल, very basic rule, that your table would be in second NF. So again you cannot jump into 3NF, you have to pass on from 1NF to second NF to then third NF. Now the second rule is has no transitive functional dependencies. Now what is transitive functional dependencies? उसे समझने के लिए आपको फिर से हम उसमें जाएंगे, फिर से उसमें चलते हैं जो मैंने एग्जाम्पल लिया था. एक मिनट, where is that? Yes. क्या किया था हमने, देखो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करी. पार्शियल डिपेंडेंसी मुझे पता चल गई कहाँ पे है और मैंने उसे रिमूव कर दिया, एक अलग टेबल बना दी. नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कि सब्जेक्ट आईडी जो है उस पे डिपेंडेंट था टीचर, तो मैंने सब्जेक्ट आईडी एक अलग बनाया. ठीक है. अब और मेरा उससे पहले कौन सी टेबल थी, स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच, जो भी फोन नंबर आपने लिखा था. दूसरी टेबल मेरी बन गई सब्जेक्ट आईडी और टीचर की और सब्जेक्ट नेम की. अब मान लीजिए हम तीसरा इसमें क्या डालते हैं, तीसरा इसमें डाल देते हैं मार्क्स. मार्क्स ले आती हूँ मैं इसमें. तो अगर मैं इसमें मार्क्स ऐड ऑन करती हूँ तो इसको हम मिटाते हैं एक बारी. मैंने क्या लिया है, आप फिर से एक टेबल ली है. मेरे पास इससे पहले दो टेबल्स थी. ठीक है. जिसमें मेरा क्या था, एक तो था स्टूडेंट आईडी, प्राइमरी की था. इसमें मेरा सब्जेक्ट आईडी और इसमें दूसरा था मेरा स्टूडेंट आईडी. ये दोनों का कॉम्बिनेशन था. ठीक. इसमें यहाँ पे मेरा टीचर नेम था और मेरा इसमें एक और था सब्जेक्ट, जो भी मेरा सब्जेक्ट है. अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मार्क्स का, तो मैं एक रखती हूँ स्कोर आईडी. ठीक. देन उसमें मैं रखती हूँ एक स्कोर्स या फिर मार्क्स, आप जो भी कह सकते हैं. ठीक. और एक और इसमें क्या रखें हम, मान लीजिए इसमें रख लेते हैं स्कोर हो गया, मार्क्स हो गए. और अब इससे रिलेटेड कौन से आएंगे, दो पैरामीटर्स, दैट इज योर सब्जेक्ट आईडी, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के वो मार्क्स होंगे, और एक पैरामीटर और क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी, कि वो जिस स्टूडेंट के मार्क्स हैं. ये आपको चार चीजें अपनी टेबल में चाहिए. You require all four of these. Now what happens is, in your score table, every entry is directly or indirectly related to your above two tables. ठीक है. So what are the requirement of third normal form, that it should not have any kind of a transitive dependency. So what is transitive dependency here? Like if we are having the marks, तो मुझे marks के साथ में क्या चीजें चाहिए. अब इसके साथ डिपेंडेंसी कहाँ दिख रही है, एक तो दिख रही है एग्जाम का नाम क्या है या सब्जेक्ट का नाम क्या है या फिर सब्जेक्ट आईडी, अगर मैं उसे लेके चल रही हूँ तो.
तो सब्जेक्ट आईडी या एग्जाम नेम, इस पे मेरी डायरेक्टली डिपेंडेंसी दिख रही है मुझे एक, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कॉलम है मार्क्स का, जो मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, मैं सिर्फ आपको मेन कॉलम दिखा रही थी। एक होगा मार्क्स का जो डेफिनेट है कि कितने मार्क्स आए, या आप उसे जो भी कह सकते हैं कि कितना स्कोर किया बच्चे ने। अच्छा, बना रखा है, सॉरी, बना रखा है यहाँ पे हमने स्कोर या मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो आपके दो चीजें हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी, जिस पे डिपेंडेंसी बन रही है, बिकॉज दीज टू आर दी कंपोजिट कीज। कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, सब्जेक्ट की आईडी क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या मार्क्स रहेंगे। तो एग्जाम नेम जो है, जो आपका सब्जेक्ट नेम है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। इतना समझ में आ रहा होगा? अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो डू लेट मी नो। अब बात करते हैं हम किसकी, टोटल मार्क्स या मार्क्स ऑब्टेन्ड जो बच्चे ने किए। सो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये जो मार्क्स मुझे मिले, ये किसके करस्पॉन्डिंग होंगे, जो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग होंगे। इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किससे, जो भी मेरी कॉम्पोजिट कीज हैं, दैट इज सब्जेक्ट आईडी एंड स्टूडेंट आईडी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है, दैट डिपेंड्स अपॉन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, rather than depending upon the prime attributes or primary key. So that is known as transitive dependency. किसी को समझ में आया या मैं दोबारा से समझाऊं कि यहाँ पे आपका जो ये मार्क्स था, ये मैम एक बार marks- रिपीट। मैं दोबारा से देखो दिखाती हूँ तुम लोगों को। मान लीजिए ये टेबल थी मेरी, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लेती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ रोल नंबर, यहाँ पे मैंने डाल दिया रोल नंबर इज योर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। नाउ दिस इज योर सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ मार्क्स, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, मान लीजिए टोटल मार्क्स डाल देते हैं, अटेंडेंस, कुछ भी डाल दीजिए आप, ठीक। हमें इन 4 चीजों की जरूरत है इस टाइम पे। अब देखो, रोल नंबर इज अ यूनिक की, प्राइमरी की फॉर द वेरी फर्स्ट टेबल जो मेरे पास में थी, जिसमें स्टूडेंट का सारा डेटाबेस था, एड्रेस, कोर्स एंड ऑल दैट, फोन नंबर्स, तो उसके लिए रोल नंबर मेरा प्राइमरी था। सब्जेक्ट कोड किसके लिए प्राइमरी था, जब हम ये देख रहे थे उस टेबल में कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट टीचर आ गया मेरे पास में सब्जेक्ट का नाम आ गया और सब्जेक्ट कोड आ गया, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कोड मेरा प्राइमरी था, ठीक है। इस पर्टिकुलर मार्क्स के लिए, ये जो मैंने मार्क्स की टेबल बनाई है, इसमें ये दोनों कंबाइन होके मेरा कॉम्पोजिट की बना रहे हैं, कैंडिडेट की बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मार्क्स की, मार्क्स वाला कॉलम, तो मार्क्स जो है वो मेरा टोटली डिपेंडेंट किस पे है, सब्जेक्ट नेम में। अगर आपके पास में लिस्ट हो कि भाई मान लीजिए रोल नंबर 1 हर्षित हैं, सुनील हैं, देन उसके बाद अब्दुल हैं, देन अब्दुल कादिर हैं, देन अदनान हैं। अब लिस्ट है मेरे पास पूरी, यहाँ मैं मार्क्स भर रही हूँ, मान लीजिए 45, 46, 42, 43, 44। ये मार्क्स किस पे डिपेंडेंट है, ये मार्क्स किसके हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना ये मार्क्स हर्ष के हैं, ना मैं ये कहूंगी कि ये मार्क्स जो है मान लीजिए जो सब्जेक्ट फैकल्टी है उसके हैं, नहीं, ये मार्क्स किसके हैं, किस सब्जेक्ट के हैं। तो सब्जेक्ट नेम पे आपके मार्क्स जो हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ देखें अगर आप, तो प्राइमरी कीज मेरी कौन कौन सी थी, रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड, इन दोनों पे ही डिपेंडेंट नहीं है। तो कोई भी ऐसी टेबल जहां पे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम कॉलम, वो डिपेंडेंट है किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे, देन इट इज नोन एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जबकि होना डिपेंडेंट किस पे चाहिए था, प्राइम एट्रीब्यूट्स पे, उन दोनों पे ही वो डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो थर्ड NF क्या कहता है, दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इस टेबल में अगर मैं देखूं तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पे कहाँ दिख रही है आपको, ये दिख रही है कि अगर मैं ये नाम चेंज कर दूं, रॉबर्ट फिल, मान लीजिए फुल नेम आप चेंज करवाना चाहते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं लोगों के, आप मेंबरशिप वही है आपकी, आप नाम चेंज कराना चाह रहे हैं, ठीक। मान लीजिए किसी का सेक्स कन्वर्जन हुआ है, नाउ व्हाट विल हैपन, उसका सैल्यूटेशन चेंज हो जाएगा, मिस्टर से मिस हो गया, मिस से मिस्टर हो गया, दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। देन व्हाट विल हैपन, आपका सैल्यूटेशन चेंज हो गया। तो अब आपका दिस इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नाउ दिस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट is directly connected with your again another non-prime attribute. So salutation ID is changing or dependent upon which prime attribute or which non-prime attribute, full names. Okay. So it is not responding, or it is, yes, it is responding. So getting this point, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखा कि सैल्यूटेशन आईडी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारी फुल नेम्स पे। तो मेरा यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, अब मुझे इसे हटाना है। So how I am going to remove this transitive dependency? I am again break my table into another table. Now membership ID, oh sorry, this one. Now membership ID, oh salutation ID would be referencing to my salutations. Now salutation ID will be performing as your primary key to this particular table, and salutation ID will be performing as a foreign key in this particular table. तो फॉरेन की समझ में आ गई होगी कि फॉरेन की क्या है हमारी और प्राइमरी क्या है, कॉम्पोजिट की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। नाउ अब बात करते हैं कि मेरा अब इसमें इस पर्टिकुलर टेबल में अगर मैं बात करूं तो ईच एंड एवरी एंट्री इज यूनिक, कहीं कोई रिपीटेटिव एंट्री नहीं है। मेंबरशिप आईडी यहाँ सेम है, आपको रिपीट यहाँ दिख रही हैं, बट द वैल्यूज अगेंस्ट देम इज डिफरेंट, तो इसीलिए ये रिपीटेटिव एंट्री नहीं होगी। ओके, तो समझ में आ गया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज योर नॉर्मलाइजेशन। अब इसके बाद आता है द लास्ट वन विच इज योर BCNF। सो BCNF में क्या होता है, कुछ अनॉमलीज जो मेरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रह गई वो मेरी BCNF में रिमूव होती हैं। So BCNF we are not taking seriously so much because उस पे थोड़े से questions जो हैं वो complex हो सकते हैं। तो if you want to study we will go through that। उसमें कुछ नहीं है, उसमें जो आपकी functional dependency की हमने बात की थी, याद होगा अगर, कि functional dependency हमने बताई थी, तो अगर वहाँ पे x tends to y, ये रूल याद रखना BCNF के लिए कि functional dependency is some column is totally dependent upon another column. So if this, that y, am I audible now? Yes, ma'am. Now आपकी you are आवाज audible. चली गई थी बीच में। एक मिनट, let me share. So I was talking about BCNF. So what happens in BCNF is if x is dependent upon y, do remember this formula for BCNF, कि अगर मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करती हूँ, फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है BCNF के अंदर
तो x tends to y मतलब y is totally dependent upon x. Whatever the changes you made in x, that will be reflected in y. तो अगर कहीं आपको इस तरह का डिपेंडेंसी दिख रही है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, so in BCNF what you have to do is you have to be sure about that x should be a super key. Now what is super key? Anyone? No, नहीं पता. Okay, so what is super key is जैसे आपने कीज अभी मैंने आपको बताई, प्राइमरी की बताई, फॉरेन की बताई, तो सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ द कैंडिडेट की. ओके, so super key you can say it is as a set of those key which can identify the row or a tuple uniquely. ध्यान रखिएगा ये लाइन, रो और a tuple uniquely. so ये सेट हो गया. so वर्ड जो सुपर है यहाँ पे वो क्या है, सुपीरियोरिटी डिफाइन कर रहा है किसी भी की. तो सुपीरियोरिटी मतलब कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेट से कोई भी की जो है वो बना सकते हो. सो x टेंड्स टू y, या x जो है सुपर की होना चाहिए, मतलब आप उस पर्टिकुलर सुपर की से आप कैंडिडेट की कभी भी ऑब्टेन कर सकते हो. एंड यू नो व्हाट इज कैंडिडेट की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट यूनिक कीज. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है किसमें, इफ यू आर गोइंग फॉर द BCNF. फाइन. अब एक लास्ट इसमें बताया गया था हमें, दैट इज एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स. सो एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स इज वेरी इजी टॉपिक जो आपको पढ़ना था. बेसिकली जो भी एंटिटीज होती हैं हमारी कोई भी रियल वर्ल्ड की, क्योंकि हम DBMS की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा मोस्टली रियल वर्ल्ड का है, ठीक है, रिलेशनशिप्स रियल वर्ल्ड्स के हैं. तो हम जो हैं जब हम एंटिटी की बात करते हैं, एंटिटी that is tangible or intangible, you know the word tangible and intangible, right? so कोई भी एंटिटी इजीली आइडेंटिफाई कब होगी, जब आपके पास उससे रिलेटेड सारा डेटा होगा और एक कोई ना कोई आपके पास यूनिक या प्राइमरी एस्पेक्ट होगा जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर एंटिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मान लीजिए कॉलेज का डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट और उनके जो भी प्रोजेक्ट्स वो हैंडल कर रहे हैं वो सारा हमने डेटा लिया है. अब हर एक एंटिटी अगर आप यहाँ देखोगे, then this particular entity is totally dependent upon every other entity or in a relationship with every other entity. So how it is going to be connected, we will see. So अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, we are having an entity professor. So professor is belonging to math, belonging to physics, belonging to management, belonging to any other department. So professor is like, it is a database which is having the name of each and every professor belonging to each and other departments. So ये जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, this is the relationships. ठीक है, ये रिलेशनशिप्स हैं, ये लेबलिंग है. आपने ER डायग्राम्स में वैसे ये बनाया है, बट जस्ट फॉर अ रिविजन. अब यहाँ पे कितनी तरह के होते हैं हमारे पास, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many एंड सेल्फ रेफरेंसिंग. जब भी आप ER डायग्राम्स बनाएंगे या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स में आप जब भी इस तरह से रिलेशंस दिखाएंगे, डू मेक श्योर कि आप किस तरह से रिलेशंस को मैनेज कर रहे हैं, आपको दिखाना है. तो 1 to 1 is what, that your two tables, you are having two tables in your database, there is a relationship between those two tables and each record of your one table would be connected with the at max of one record of your other table. मतलब अगर मैं किसी एक टेबल की बात कर रही हूँ तो दो टेबल में किसी एक रिकॉर्ड जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ किसी एक रिकॉर्ड से. कनेक्शन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, मतलब मैक्सिमम एक होना चाहिए कनेक्शन, एक से ज्यादा नहीं. दैट इज योर 1 to 1. यानी अगर एक रो की मैं बात कर रही हूँ तो 1 row would be connected to only 1 row, not more than 1 rows. This is your 1 to 1 connection. 1 to many
इसका एग्जाम्पल अच्छा कोई देना चाहेगा 1-to-1 कनेक्शन का? लाइक एक लोग का एक ही आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड नंबर। यस, बिल्कुल सही। वन पर्सन नेम मान लीजिए मैंने लिया है, दैट इज कनेक्टेड टू ओनली इट्स आईडी, जो भी उसका आईडी अब होगा। नेम और रोल नंबर। यस, नेम एंड रोल नंबर। तो नेम और रोल नंबर के बीच में 1-to-1 कनेक्शन हाँ? रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्या है। नेक्स्ट है 1-to-many। व्हाट इज अब 1-to-many? करेंगे। एक मिनट, लेट मी म्यूट हिम। नहीं पता नहीं। ओके, आई थिंक म्यूट हो गए हैं वो खुद। नहीं हुए हैं तो प्लीज म्यूट योर माइक्स। ओके, महेंद्र, कहाँ संदा? कहाँ पे है? कहाँ? ठीक है। I'm not able to mute him. Okay, fine, हो गया। So what I was saying is, what is one-to-many relation? So one-to-many relation is like there is a one record in your table. That particular record is connected with the multiple records in the table. So इसका example क्या होगा? Anyone? Name, subject. Name Subject. and subject. So this is your student name and this is the student name के साथ उसने कितने subjects को opt किया है. So this is the one-to-many relationship. Now what is many-to-one? Same अब आपको समझ में आ रहा है many-to-one relationship कि एक से ज्यादा records आपके connected हैं किसी एक record के साथ. इसका example? Employee, company. Employees और किस कंपनी में वो काम करते हैं. वेरी गुड. Pets owned by a person. Pets to पेट्स person. ओन्ड बाय अ पर्सन. वेरी गुड. कि एक पर्सन के एक से ज्यादा पेट्स हो सकते हैं. मैनी टू मैनी. अब मैनी टू मैनी में ये हो गया कि मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं आपके दोनों ही टेबल के. यहाँ पे मान लीजिए 4 एंट्रीज हैं तो चारों की चारों एंट्रीज हो सकता है अदर 4 एंट्रीज से डायरेक्टली कनेक्टेड हो. इसका क्या रहेगा एग्जाम्पल मैनी टू मैनी का? एनीवन? नहीं आता रहा मैनी टू मैनी? हम स्टूडेंट्स एंड चॉकलेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे चॉकलेट्स खा सकते हैं. ये क्या मैम है मैम एग्जाम्पल? हाउस ओनर और हाउस मतलब एक इंसान के बहुत सारे हाउस हो सकते हैं और एक हाउस का दो से तीन ओनर भी हो सकते हाँ, ये ज्यादा सही है. मेरा वाला है. हमें हाँ. लीगल है तो Ma'am, train, sleeper class and many classes and passengers. Many मैम passengers. बुक्स एंड ऑथर्स. बुक्स एंड ऑथर्स. यस, बिल्कुल सही है. ट्रेन का भी सही एग्जाम्पल है. स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल भी सही था बट नॉट फॉर द चॉकलेट्स. एंड इसमें मतलब आपको समझ में आ गया मैनी टू मैनी में क्या हो रहा है कि आपकी मल्टीपल एंट्रीज जो हैं वो मल्टीपल उनसे कनेक्टेड हैं अदर एंट्रीज से जो दूसरी टेबल. Now there is a self-referencing relationship. What is self-referencing relationship? This is used when a table needs to define a relationship with itself. ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे सेल्फ रेफरेंसिंग रिलेशनशिप का? कब हो रहा है सेल्फ रेफरेंस रिलेशनशिप? मान लीजिए कोई एक कॉलम है. There is a column in a table that is going to relate to the another column of the same table. A column of the table, one column of the table is related to the another column of the same table. इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में.
That is known as self-referencing. It means if I want to find out the teacher name, faculty name, and that faculty name is dependent upon the subject. Okay. So यहाँ पे आप सेम टेबल के अंदर, अब यहाँ पे हम सेम टेबल की बात कर रहे हैं, तो सेम टेबल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं फाइंड आउट कर रही हूँ जैसे टीचर का नाम, तो टीचर नेम मुझे कहाँ मिल रहा था, उसी सेम टेबल में जो सब्जेक्ट है उससे, प्राइमरी की या किसी और एट्रीब्यूट से नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे जब ऐसा हो कि एक कॉलम आपका इन रिलेशनशिप विद हो अनदर कॉलम के ऑफ द सेम टेबल, देन दिस इज द सेल्फ रेफरेंसिंग रिलेशनशिप। तो ये होते हैं आपके ईआर डायग्राम्स में। ठीक, अब इसमें हमारा जो आता है, जो क्वेरीज आज हमें करनी थी प्रैक्टिस सेशन के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी क्वेरीज हमें करनी है। एक मैंने बताया था आपको जिसमें आपने कल यूज की थी माइनस, याद है? आई थिंक प्रियंका ने बताई थी शायद माइनस की। माइनस के साथ साथ ही कंस्ट्रेंट होते हैं आपके, यूनियन हो गया, जैसे इंटरसेक्ट हो गया, तो यू हैव टू यूज यूनियन, यू हैव टू यूज इंटरसेक्ट, डू राइट इट डाउन कि आपको क्या करना है इसमें। देन उसके बाद में हम बात कर सकते हैं अलाइसिस की। अलाइसिस पता है? चलो बात करेंगे उनकी भी। देन उसके बाद में हमने बात करी, सॉरी, इसकी नॉर्मल फॉर्म्स की। तो इस पे क्वेश्चन जो है वो इम्प्लीमेंट तो काफी मुश्किल हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, बट यस, पेन ऑन पेपर पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको टेबल दूंगी, आपको टेबल को सॉल्व करके मुझे दिखाना होगा। ऑन अ पेन और अ पेपर आप जो भी हैं आप मुझे उसके फील्ड नेम बता देंगे। देन उसके बाद आता है ट्रंकेट, डिलीट, ड्रॉप। सो ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप स्टेटमेंट्स को हम कहाँ यूज करते हैं? हमें पता है वैसे तो डिलीट, हम किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को अगर टेबल में से डिलीट करना चाहते हैं हम यूज कर सकते हैं। ट्रंकेट कब करते हैं? जब आप सारी रोज को, यस बिल्कुल, जब आप सारी रोज को डिलीट करना चाहते हैं। और ड्रॉप आप कब करते हैं? जब कोई आप एंटायर ऑब्जेक्ट रिमूव। Okay, so what I was saying is truncate, delete, drop, that you have to implement all these in today's session, जो हमारा 2 से 3 रहेगा। ठीक, उसके बाद में कुछ हमारी आती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए, आई थिंक वो आपको पता होगा। और लास्ट टॉपिक हमारा बचता है OLTP एंड व्हाट, OLAP। सो थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दे देती हूँ। OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने जो है एक पर्टिकुलर सेशन ऑन किया है, ठीक है। अब उस सेशन में क्या हो रहा है कि आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। सो ट्रांजैक्शन को कॉन्करेंट बनाए रखना, दिस इज द आवर मेन मोटिव इन OLTP। कि कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो अकर हो रहे हैं, जैसे पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरा, मान लीजिए फ्रॉम बैंक टू द ATM, देन ATM टू अनदर बैंक, देन अगेन बैंक टू द ATM, या कुछ इस तरह से जो भी पॉइंट्स मुझे बीच में मिल रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्करेंट होने चाहिए। कॉन्करेंट होने का मतलब है कि आपका सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड रहे। अगर कहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो आपके फेलियर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। So online transaction processing is totally and wholly responsible for concurrency of your data. So concurrent data कब होगा? जब everything is centralized, centrally connected होगा, आपका architecture centralized होगा, तो failure के chances नहीं होंगे। इसमें एक टर्म आता है check point and एक टर्म आता है roll back. ये terms I am just defining these terms because these are the terms जो हमें database से पता होने चाहिए कि हाँ हमसे पूछे जा रहे। तो चेक पॉइंट क्या होते हैं? किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए जब एक पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद, लेट मी शो दिस, वेट,
सी ओके, क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, दिस इज द क्लाइंट एप्लीकेशन, इसका पॉइंट जो नेक्स्ट मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, दिस इज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सेशन मैनेजर, ठीक है। अब व्हाट इज हैपनिंग हियर इज द सेशन मैनेजर इज अगेन कनेक्टेड विद योर compiled SP. So what is compiled SP here? कोई बता पाएगा? मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछ, मैं समझ नहीं पाया क्या, किसमें क्या, किसके रेफरेंस में बताएं? ये हम बात कर रहे हैं OLTP, that is your ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया कि जो OLTP है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, कॉन्करेंसी। कंकरेंसी, यस, तो कॉन्करेंसी हम कब लेते हैं, जब हमारा सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो। सेंट्रलाइज्ड मतलब जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, चाहे इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, कुछ भी हो रहा है, वो वाया CRM रहे। CRM या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम, आप कुछ भी उसके समझ लीजिए समझने के लिए, कि वो हमारा डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड हो, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए किस तरह से मेरा काम हो रहा है OLTP के अंदर। तो क्लाइंट एक एप्लीकेशन है, सेशन मैनेजर है, एक हर एक सेशन का आपका एक मैनेजर रहेगा, जैसे हमने नेटवर्क में भी सेशन पेयर देखी है। सो फॉर अ टाइम बीइंग दैट पर्टिकुलर सेशन हैज बीन लॉग्ड, जैसे ही कोई सेशन स्टार्ट होता है, वहां पे पार्सर है उसके साथ में जो पार्स कर रहा है जो भी उस सेशन, पर्टिकुलर सेशन के लिए, कि मुझे ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो पार्स करते हुए चलना है, जो रिक्वेस्ट आ रही है। देन उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे कंपाइल्ड SP है। व्हाट इज कंपाइल्ड SP? आई एम आस्किंग दिस। मैम कंपाइल्ड स्टोर प्रोसीजर। कंपाइल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर मैम, What- ये शायद क्या यही होता है ना? वैसे सेपरेट। हाँ नहीं, देखो क्या होता है किसी मैम, भी, हाँ सब बताओ। रूटीन होता है ना, प्रोसीजर जो होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। जो स्टोर्ड प्रोसीजर है दैट इज योर लाइक, जो आपने मशीन लैंग्वेज यूज की है, वो आपके स्टोर्ड प्रोसीजर जो है बेसिकली मशीन लैंग्वेज में यूज होते हैं फॉर द CPU यूटिलाइजेशन, एग्जीक्यूशन के लिए, लेटेंसीज के लिए। तो CPU यूटिलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। इसमें क्या है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कंपाइल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर लाइक योर ट्रांजैक्शंस इन योर SQL दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, कि ये प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है हम एग्जीक्यूट करने हैं, which is again compiled to your machine codes. They are not interpreted, they are compiled. ठीक है, तो जो क्वेरी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंपाइलर की उसमें हो रहा है। तो हमने वहां पे इंटरप्रेटर नहीं लगा, इस वजह से हमारे पास में यहाँ पार्सर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये कंपाइल्ड स्टोर प्रोसीजर्स जो हैं दे आर हैविंग द रिलेशनशिप विद द टेबल एंड इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मैंने आपको बताए थे उस दिन भी। सो टेबल्स एंड इंडेक्सेस के साथ हैं फॉर द मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है अब, दिस इज योर TSQL क्वेरी एग्जीक्यूशन। नाउ व्हाट इज TSQL? TSQL इज योर ट्रांजैक्ट SQL, ठीक है। अगर आपने इसका नाम सुना है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, but it is used in the transactions, for only for the transactions or for the error handling. So अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, what is the difference between SQL and TSQL? So कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, बट एक आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक्सटेंशन है ये SQL का, जो बेसिकली यूज किस में होता है, अपने ओरेकल में, माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर में, और कहीं पे यूज नहीं होता।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है क्वेरी का एग्जीक्यूशन करा है विद द हेल्प ऑफ TSQL, और वो अगेन फर्दर ये किस में मेरा कनेक्टेड है, क्योंकि अपडेशन कहाँ होगा, टेबल्स और इंडिसेस में। तो यहाँ पे कुछ ये सेशन इस तरह से चलता है OLTP का, कि जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन मेरे सेंट्रलाइज्ड हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड होने का मतलब क्या हो गया कि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस अकर होंगे that are on particular RDBMS that are giving you a kind of satisfactory assurance that this particular application or this particular execution is being centralized, और इसमें फेलियर के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो मोस्टली हमारे जो OLTP सिस्टम्स होते हैं वो बहुत एक तरह से जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो बहुत क्विकली होते हैं, चाहे रीड हो राइट हो, रिस्पॉन्ड बहुत क्विकली रहता है इनके अंदर, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। ठीक, एंड और जो इसके अंदर हमारा डेटा सोर्स है दैट इज द ओरिजिनल डेटा सोर्स, दैट इज नॉट द डमी डेटा सोर्स। तो ये भी एक चीज इसमें रहती है। चैलेंजेस ऑल्दो इसमें काफी होते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में आप OLTP नहीं यूज करते, उस केस में OLAP यूज होता है, जहां पे व्हाट इफ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो OLAP इज योर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो जब मुझे जहां पे मेरे डिसीजन मेकिंग हो गया, जैसे ATM है, सो ATM इज नॉट ए OLAP, ATM इज OLTP। क्यों है, क्योंकि वहां पे कहीं कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर ऐसा हुआ, सपोज दिस इज द कंडीशन, देन व्हाट वुड हैपन। OLTP में अब आप कहो कि मैम मैंने पैसे निकालने के लिए डाली क्वेरी की, और क्या हुआ कि क्वेरी जो है वो रिवर्ट हो गई, मतलब मेरे पैसे नहीं निकले और पैसे कट गए, तो वो कोई डिसीजन नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया था इसमें दो टर्म आते हैं, दिस इज योर चेक पॉइंट और होता है एक रोल बैक। तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन अकर हो रही है, कोई भी फेज है आपका, उस फेज में जब वो कंप्लीट हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वहां पे एक चेक पॉइंट लग जाता है। ऐसे ही हर टाइम पीरियड बाद चेक पॉइंट्स लगते जाते हैं। अगर ट्रांजैक्शन बीच में कहीं फेल हो गई, सर्वर कनेक्टिविटी नहीं रही, तो रोल बैकिंग होती है। और कहाँ तक रोल बैक होता है, जो भी लास्ट चेक पॉइंट से मिलता है वहां तक। तो वो OLTP का काम है, OLTP के अंदर आ जाएगा। एंड व्हाट इज OLAP, जहां पे डिसीजन मेकिंग हो गई। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन करना है, अब उस एग्जीक्यूशन के अंदर मेरी कुछ कंडीशंस हैं जहां पे आपको क्वेरी को एनालाइज करने की जरूरत है। तो जब आपको क्वेरी को एनालाइज करना हो, कहीं कोई नई चीज इन्वेंट करनी हो, वहां पे आप OLAP डेटाबेस यूज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, OLTP OLAP तो दोनों फास्ट हैं, लेकिन एनालिसिस जो है वो कहाँ होगा, मेरा OLAP में होगा। तो यहाँ पे आप डेटा के ऊपर एनालिसिस ज्यादा करते हो। जैसे कि जो डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट के पास जो टूल्स हैं, दे आर वर्किंग अपॉन OLAP, जहाँ पे एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक, देन उसके बाद आई थिंक यही था आज की क्लास के लिए जो हमें करना था, जो पॉइंट्स हमें कवर करने थे। अगर इसमें आज के क्लास में अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ है, देन डू लेट मी नो, बिकॉज फिर हमारे पास आज सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद कल हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में वी विल बी गोइंग थ्रू योर पेजिंग टेक्निक्स and your deadlock detection and prevention. So वो basic questions आपके उसमें बनते हैं। मैम OLAP के एग्जांपल हेलो, आवाज कट गई बच्चे, दोबारा बोलो। बताना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलना, तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। मैम OLAP के एग्जांपल। देखो, OLAP जो है वो मोस्टली आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, जहाँ पे आपको एनालिसिस करना हो। इसके टूल्स आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सुना होगा, एनालिसिस सर्विस,
माइक्रो स्ट्रैटेजी करके एक आता है टूल, ओरेकल के आते हैं टूल, क्योंकि इनके अंदर जो है बेसिकली एनालिटिकल प्रोसेसिंग चल रही है। तो कमर्शियल फॉर्म में आपको ये मिलेगा, आप कहो पर्सनल फॉर्म में मैं यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि वेयर हाउसिंग में, डेटा माइनिंग में OLAP टेक्निक यूज होती है। अब मैंने आपको डेटा माइनिंग आई थिंक लास्ट, नहीं शायद आपको नहीं बताई। जैसे क्या होता है डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग में, मुझे जो है मुझे डेटा स्टोर करना है। अब स्टोर किस फॉर्म में करना चाहती हूँ मैं, किस तरह के स्टैक्स बनाना चाहती हूँ, स्टैक्स पे किस तरह के ऑपरेशंस होने चाहिए। अगर मैं, जो डेटा वेयर हाउस का मतलब ये हो गया, दिस इज लाइक यू गो इन योर सुपरमार्ट और वहां पे आप जो है स्टैक्स देखते हो, ठीक है। तो जब आप वहाँ स्टैक्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि द आइटम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली they are put it down in some kind of a groups। अगर आप देखो कभी ध्यान से, आप किसी बड़े सुपरमार्ट में जाओ, आपको बहुत आराम से डिस्टिंग्विश करना, मतलब बहुत इजी हो जाता है डिस्टिंग्विश करना आइटम्स को। So the bread section is from one area, is in one area, and the utility and the bathroom section is on another side, बिल्कुल another side पे। क्यों होता है? या आप ये देखो कि वहां पे जो उन्होंने वेयर हाउस क्रिएट किया हुआ है अपना, तो उसमें आइटम्स को कैसे उन्होंने आपस में कंबाइन किया हुआ है। जैसे ब्रेड के साथ में बटर आपको मिलेगा, ब्रेड के साथ में एग्स आपको मिलेंगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द एनालिसिस पार्ट, कि अगर एक कस्टमर जो है वो ब्रेड लेने आया है, सो इट कुड बी द केस कि वो ब्रेड के साथ में बटर या फिर एग उठा लेगा, क्योंकि अगर वो ब्रेड खाने जा रहा है तो एक चीज हो सकती है 50% और 80% वुड बी दी पर्सन्स की वो उसके साथ में ब्रेड और बटर या फिर एग ले जाएं। मिल्क सेक्शंस, बेकरी सेक्शंस, दे आर कंबाइंड, वो आपस में रखे होते हैं। और अगर आप जाएंगे तो यूटिलिटी आइटम्स की तरफ जाएंगे तो बाथरूम सेक्शंस हो गए और उसके साथ में कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, ये चीजें आपस में कंबाइंड होती हैं। तो ये क्या है, दिस इज द एनालिसिस दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उस एनालिसिस को हम OLAP में करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि वेयर हाउस और माइनिंग के केस में आप इस टेक्निक को यूज करते हो, स्पेशली इन द वेयर हाउस, कि आपको किस तरह से, नॉट प्रॉपरली इन द माइनिंग, बिकॉज माइनिंग में तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि लोग क्या चीजें किसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं। तो जैसे मेरे पास में 5 कस्टमर आए, 5 कस्टमर, कोई एक पर्टिकुलर आइटम सबकी कॉमन है, तो उसके साथ रिलेटेड आइटम्स क्या होंगे। जैसे आपको ये फ्लिपकार्ट या अमेजन अगर आप वेबसाइट खोलें तो उसमें नीचे आपको दिखता है कि अदर कस्टमर ऑल्सो बाय दिस विद दिस आइटम। सो हाउ दे आर गेटिंग दिस, दे आर एक्चुअली माइनिंग द डेटा कि लोग इस पर्टिकुलर आइटम के साथ और क्या क्या खरीद रहे हैं। अब मैं ग्रुपिंग कैसे करूंगी, दैट इज द वेयर हाउसिंग, कि मैं उस पर्टिकुलर आइटम के साथ अगर मुझे कोई डील लगानी है, जैसे डील्स आती हैं तो बाय 1 गेट 1 या इसके साथ ये फ्री है, ये डील आप कैसे एनालाइज करोगे, दैट कम्स अंडर योर OLAP। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप इसको यूज करते हो। मैम इसमें एनालिसिस पार्ट है वो ह्यूमन करते हैं या कंप्यूटर करता है? कंप्यूटर एल्गोरिदम, OLAP एल्गोरिदम्स होती हैं जिसमें स्लाइसिंग, ड्रिल डाउन, रोल अप, ये सारे फंक्शंस या ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। बेसिकली एक पाइवेट होता है जिसमें आपको एक डेटा व्यू मिलता है, आप डेटा रोटेट कर सकते हो, आप डेटा पे ऑपरेशंस करते हो, स्लाइस करते हो डेटा को, रोल अप करते हो, तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। सॉफ्टवेयर होता है पूरा एक इसमें, ठीक है। MOLAP, मल्टी डायमेंशनल OLAP होते हैं, उसमें रिलेशनल OLAPs होते हैं, हाइब्रिड OLAPs होते हैं, तो बहुत सारे आपके टाइप्स आते हैं जिसमें आप इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो। सो अगर आप OLAP के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, गो फॉर द डेटा माइनिंग, उसमें आपको अच्छे से दिखेगा। डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं, उसके अंदर आपको ये टेक्निक्स मिलेंगी। सॉफ्टवेयर जो हैं फ्री नहीं है, बट वर्जन्स आपको मिल सकते हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो वहाँ पे आपके पास में डमी डेटा होना चाहिए जिसपे आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि डेटा मेरा जो है वो किस तरह से व्यू किया जा रहा है।
अगर आई एम हैविंग अ डील, मेरे पास में कोई डील आ रही है, तो वो डील किस तरह से बनानी है कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो। तो लोग क्या देखना पसंद करते हैं, आप देखेंगे आज के टाइम में इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो है वो क्यों डाउनफॉल की तरफ है अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस रादर देन योर कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड टू योर कंप्यूटर साइंस, जस्ट बिकॉज ऑफ कि we are seeing the impact of computer science, we are not seeing the impact or the application areas of other branches, उतना ज्यादा involvement नहीं है। and computer science students are having hands on experience on each and every areas because उन्हें वो मिल रहा है exposure। तो किस तरह का डेटा है, उस डेटा का क्या प्रोसेस हो रहा है, एनालाइज करना उस चीज को, देन उसके बाद में उसको वेयर हाउस मतलब एक तरह से उसके स्टैक्स बनाना। तो ये सारा प्रोसेस है OLTP के अंदर। OLTP इज फॉर द ट्रांजैक्शंस, कि अगर मुझे ट्रांजैक्शंस कोई ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है पैसा निकालना ही होता है, ट्रांजैक्शंस आपकी हर वो ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू द फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, आपका डेटा ट्रैवल जो कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शंस मेरी कॉन्करेंट होनी चाहिए, रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे OLTP। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया, एटलीस्ट यू मस्ट बी हैविंग द रफ आइडिया। फाइन, ओके। तो इसमें हम आज की क्लास में इतना ही करते हैं फिर, और इसके अंदर जो हमारी 2 से 3 बजे सेशन रहेगा उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैंने आपको कमांड्स बताई हैं, सो दैट कि हम फटाफट से उनसे गो थ्रू करें। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इधर से करके दिखाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथ से उसे निकालें। तो आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर होगा, नहीं है तो आप आराम से ऑनलाइन कंपाइलर ऑन करके उसे चला के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैटर्न मैचिंग की बात होती है, पैटर्न मैचिंग बहुत पूछा जाता है, तो उसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, किसी को पता है पैटर्न मैचिंग के लिए? लाइक ऑपरेटर, LIKE। जैसे आप गूगल पे टाइप Yes, करना ma'am. शुरू करते हैं, है ना, तो आप टाइप Yes, करना ma'am. Yes, Like ma'am. के आगे कुछ हाँ। इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कुछ परसेंटेज वगैरह something. कुछ कहाँ से आप M से अगर स्टार्ट करना है M% M होता है। परसेंटेज, यस। तो ये क्या है, दिस इज द बेसिक SQL query to find out a particular word or a sentence which could be starting from that particular letter। तो उसके आगे जितना भी होगा वो उसको स्किप कर देगा, दैट इट विल बी फोकसिंग ऑन जस्ट पर्टिकुलर दैट लेटर जो आपने लिखा है वहां पे। सो पैटर्न मैचिंग हमारा कहाँ यूज होता है, जो भी आप ये SEOs हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम सर्चिंग जो कर रहे हैं, हम सर्चिंग किस वर्ड के साथ कर रहे हैं, क्या चीज है जो रिलेटेड है मेरी उस वर्ड के साथ। तो अगर मैं गूगल पे टाइप करना लिखूं कंप्यूटर, सो कंप्यूटर से रिलेटेबल सर्च वो सारे आ जाएंगे। सो वहां जो क्वेरी चल रही है वो लाइक ऑपरेटर की चल रही है, तो वो क्वेरी आपको इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए या पता होना चाहिए। ठीक, एक पॉइंट। अगर मान लो मुझे जो है एक टेबल है मेरे पास में क्रिएटेड है, स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट है उस टेबल का, और एक और मुझे टेबल बनानी है विद द सेम स्ट्रक्चर, तो पता है कैसे करते हैं? कोई एम्प्टी टेबल आपको बनानी है मान लीजिए, और सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि आपने पहले स्मार्टली पहले टेबल एक बना रखी है। इनटू ऑपरेटर होता है किसके लिए, ये इम्प्लीमेंटेशन आज 2 से 3 बजे करते हैं, सो दैट छोटी छोटी चीजें दैट यू वुड नॉट बी स्किपिंग ऑल। इनटू के साथ वेयर लगा के, इनटू के साथ वेयर लगा के, बिल्कुल। ये दोनों ऑपरेटर जो है साथ में यूज किए जाते हैं सो दैट कि फॉल्स रिकॉर्ड्स ना बने और स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहे। तो ये देखेंगे आज, ठीक, उस सेशन में फिर मिलते हैं। देन उसके बाद 3:30 से आपकी फिर से एप्टीट्यूड की क्लास है, एंड डोंट स्किप योर एप्टीट्यूड क्लासेस बिकॉज यू डोंट हैव सो मच टाइम। वो चला गया अब आपका टाइम जो आपका यूज होना था पहले। ओके